Look at the question of exercise 10.4. Question first. Two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between circle is 4 cm. Look at this figure. It is the first circle with radius 5 cm. It is the second circle with radius 3 cm. Look at this. Its radius 3 cm. 3 cm. O center of the bigger circle. O dash. It is a O dash. O dash. Center of the smaller circle. Look at this. Distance between their circle is 4 cm. इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वह 4 cm. क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल AOO dash. AOO dash. Look, AOO dash. वही कार्बन स्केयर पे वही हमारा 5 सेंटीमीटर है. 5 का स्केयर किससे इक्वल होगा 25 और AO डैश का स्केयर AO डैश 3 सेंटीमीटर 9 और OO डैश का O डैश. now we can see, look at this. AO dash square plus OO dash square is equal. AO dash square is equal 9. O dash square is 16. 9 plus 16 is equal 25. 25 is equal to this. What is here? Clear? Now, means AOO dash is a right angle. Right angle triangle. Now, angle AO dash O. AO dash O 90. किससे? बाय कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर? सिमिलरली इसी तरह से BO डैश O जो कि वही 90 डिग्री. क्लियर? नाउ देयरफॉर एंगल AO डैश B इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री. 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन होगी. स्ट्रेट लाइन है और स्मॉलर सर्कल में से पासिंग हो रही है. स्मॉलर सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है तो इसका मतलब क्या है? AB ये डायमीटर है तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. Look, therefore AB is a straight line and we can also say that AB is the diameter of smaller circle. Clear? And we got its answer 6 centimeter. Any query related to this question? Please tell me about the question and I will solve your problem. Clear? Look at the question. Question number 4 of exercise 10.4. If a line intersect two consecutive circles. देखिए consecutive circle का मतलब है which two circles have one center. Which two circles have one center, then we can say it is the consecutive. क्या कहते हैं? Consecutive circle. Clear? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लार्जर सर्कल है C1, स्मॉलर सर्कल है C. इसका जो सेंटर है 1. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? ये consecutive with center O at
intersect two concentric circles with center O at A, B, C and D. प्रूव है, हमें क्या करना है, ए बी, ये ए बी इक्वल सी करना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, ड्रा द OM perpendicular on the chord AD। AD पे कर लिया। Now OM perpendicular on the chord AD। AD is chord of bigger circle यानी larger circle, क्लियर। AD जो AD is the chord larger circle, OM perpendicular AD, so we know that OM perpendicular AD is divided into two equal parts, means bisect AN equal DN, क्लियर है। अब फिर उसके बाद देखिए OM perpendicular BC, BC is the chord of smaller circle, so BM equal CM, clear। Now OM perpendicular AD construction, since AD is the chord of larger circle and OM bisect AD bisect, now AM equal DN, equation number 1। Similarly BC is the chord of smaller circle, OM perpendicular BC, OM bisect BC, now BM equal CM, equation number 2। Now subtract 2 from 1, look at this, AM minus BM equal DM minus C। Look, AM minus BM, look at this, AM minus BM। अगर इस AM में से इस BM को लेस कर दें तो आपका रिमेनिंग क्या होगा, एक होगा ही नहीं होगा, क्लियर। अब आगे इस DM में से अगर हम CM को माइनस कर दें, ये CM, तो क्या बच जाएगा, CD। ये हमें प्रूव करना था, क्लियर। Any query of this related question, please tell me about the question, clear, okay। Look at the board। 10.5 एक्सरसाइज समझने से पहले उसका एक छोटा सा बेसिक पॉइंट, दो बेसिक पॉइंट है उनको समझ लीजिए। द एंगल सबटेंडेड बाय R at the center is the, ये सेंटर है, at the center is double reflection, double। The angle subtracted by at any point on the remaining part of the circle, ये एंगल है, एंगल BA, इसका सेंटर पर रिफ्लेक्शन डबल होगा, क्लियर। सेंटर पर एंगल डबल होगा। यहां अगर मान लीजिए आपका एंगल मान लो PA आपका 45 डिग्री, तो एंगल PO क्या हो जाएगा, PO इक्वल डबल, यानी 2 × 45 इक्वल 90 डिग्री। और अगर आपका एंगल PO क्या हो
इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर डबल होता है, रिमेनिंग पार्ट पर हाफ होता है, सेंटर का हाफ, लेकिन इस रिमेनिंग पार्ट का इधर सेंटर पर डबल। क्लियर? नाउ 60। क्लियर पॉइंट? क्लियर? नाउ एंगल इन द सेम सीक्वेंस। देखिए ये कोण है, कोण ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंगल इन द सेम सीक्वेंस आर इक्वल। ये एंगल है, ये क्या, ये भी इसी कोण पे बनता है, ये भी टर्म, ये भी बीटा कोण पर है। तो ये जो एंगल है ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। अब मान लीजिए एक और है, सेंटर से पास हो रही मान लो है, ये लार्जेस्ट नोट होती है, यानी एक तरह से डायमीटर का आसिफल होता है सेंटर, इस पे जो भी एंगल होंगे एंगल इन द सेम सीक्वेंस इक्वल होंगे। क्लियर? क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5.1। A, B and C are there point on a circle. A, B and C, ठीक है ना? अब ध्यान यहां तक पहले सी विद सेंटर O, ओवर ए सर्कल में सेंटर O, एंगल BOC, एंगल BOC, BOC 30, क्लियर? एंड एंगल AOB, एंड एंगल AOB, थोड़ा छोटा बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है? एंगल AOB 60, क्लियर? एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल BOC 30। Now D is point on the circle other than R, ABC. D पर एक पॉइंट ABC आ गया, पॉइंट एंगल ABC, ये एंगल आपको पॉइंट करना है। क्लियर? ध्यान ना एंगल AOC इक्वल क्या होगा? एंगल AOB बदल एंगल BOC, तो AOB की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, BOC क्या है? 30 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री हो गए। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए, इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री, ये सेंटर पर है और ये रिमेनिंग पार्ट पर है। ये अगर 90 डिग्री है तो इसका हाफ क्या होगा? 45 डिग्री। अगर यह 45 डिग्री है तो यहां क्या होगा? 90 डिग्री। इस नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, वी नो दैट यही बात
subtended by arc at center is double and the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle. क्लियर? तो सेंटर पर डबल है, यहां 90 डिग्री है तो यहां क्या होगा 1 डिग्री ना। एंगल एडी से आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एंगल ए और सी का हाफ कर देंगे 90 डिग्री over 2 45. It is the answer of this question. Clear? Look at the board carefully and tell me about the question and inquiry related to this question. Clear? Now look at the board. Question number 4 of exercise 10.4. In figure, angle ABC 69 degree. 69 degree. Angle ACB 31 degree. Find angle BDC. आपको ये फाइंड करना है। तो पहले ध्यान दीजिए, इन एंगल ABC हमने ABC क्यों दिया, तो देखिए यहां पर हमारा कंप्लीट एंगल जो है ABC 69 डिग्री है और 31 डिग्री ACB है, इसलिए हमने ABC ट्रायंगल लिया है। क्लियर? नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल 180 डिग्री। ABC की वैल्यू 69 इस BCA where BCA 31 degree. Clear? BCA या ACB लिखा जाता है, ACB लिखे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे भी ACB लिखे, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। 31 डिग्री प्लस एंगल CAB 180 डिग्री कितना हो गया, बताइए 10 100 डिग्री प्लस एंगल CAB 180 डिग्री एंगल CAB इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 एंगल CAB इक्वल 80 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए, एंगल CAD 80 डिग्री और एंगल हमें फाइंड करना है BDC, एंगल BDC ये। अब ध्यान दीजिए BC आपके एक कोण है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? नाउ एंगल BDC इक्वल एंगल CAB इक्वल 80 डिग्री। एंगल्स लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लियर? आर इक्वल। क्लियर? ये याद प्रूफ करना था, फाइंड करना था, एक बात है। क्लियर? Look at the board carefully and tell me about the question and inquiry. Clear?
Look at the board. Now, we will start question number 5. In the figure, A, B, C, and D. A, B, C, and D are 4 points on the side. Clear? AC and BD. AC and BD intersect at point E. Clear? Such that angle BEC equal 130 degree and angle ECD 20 degree. We will find angle BAC. Look at this. Now, in triangle CDE, CDE, तो अब यहां ध्यान जो एंगल CEB है, एंगल CEB 130 डिग्री का है, लेकिन वो इस एंगल CDE का है, क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ECD और एंगल CD बोल दो, CD, ये और ये इनका जो समय है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. क्लियर? लुक, now in triangle CEB is exterior angle, therefore angle CEB equal angle ECD plus angle EDC. CEB की वैल्यू 130, ECD की 20, 130 minus 20 and EDC. Clear? Now, angle EDC equal 110. Clear है? अब आगे देखिए बात, क्या देखिए 14 पॉइंट. ये एंगल 110 डिग्री हो गया, तो ये भी आपका हमें फाइंड नहीं करना है, एंगल भी ऐसे करना है. तो ये अगर 110 डिग्री है तो ये 110 डिग्री होगा ही होगा. क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. भाई ये कोण है और एंगल बीएसी और एंगल ईडीसी इन द सेम सेगमेंट. जब आपका एंगल ईडीसी 110 डिग्री होगा तो एंगल बीएसी भी आपका 110 डिग्री होगा. एंगल क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट. क्लियर है? नाउ वी विल राइट हियर एंगल BAC इक्वल 110 डिग्री. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Any problem? Now, if you have any query of this related question, please tell me about the question. Okay? Look at the question. Question number 9 of exercise 10.5. Two circles intersect 2 points B and C. Two circles intersect 2 points B and C. Look, B and C. Clear? Now, throw B. Two lines segment ABD and PBD. ABD. Look. And PBD. Clear? Now, are trying to intersect the circle at A, D,
पी क्यू। ब्लू टाइप क्या मिला आपको? एंगल एसीपी, एंगल एसीपी, एंगल क्यूसीडी। तो पहले आप देखिए ये कोण आपको एपी है, इसे हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे भी हमने ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ भी ज्वाइन कर दिया और ये भी ज्वाइन। तो अब ध्यान दें जो एपी कोण है इसके एंगल एसीपी और एंगल एबीपी कैसे? एंगल एसीपी और एंगल एबीपी कोण एपी का अनुसार एंगल इन द सेम सेगमेंट। जब एंगल इन द सेम सेगमेंट है दे आर आल्सो इक्वल। क्लियर? नाउ सिमिलरली अकॉर्डिंग टू डी क्या is the chord? Now angle QCD and angle QBD। ये भी क्या है? ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, so they are also equal। Clear? Now angle ABB ये एंगल और एंगल QBD। ये आपका एंगल कैसे दिखाई दे? भाई टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जब टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ लुक एट द वर्ड, नाउ लुक एट द chord AP, एंगल ACB इक्वल एंगल APB, एंगल is the same segment। Now look at the chord DQ, angle QCD equal angle QBD, number 2। Now angle ABB equal angle QBD, vertically opposite angle। Equation number 1, 2, 3 कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा एंगल ACB इक्वल एंगल QCD। ध्यान दीजिए एंगल ACB इक्वल ABB और ABB इक्वल QBD और QBD इक्वल QCD। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब प्यारे बच्चों बात सुनिए, हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन वो आपको स्वयं करने हैं और आपका ये चैप्टर नंबर 10 सर्कल कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।